everyone. My name is Nimit, and I'm here back with the continuation of get started with the Lightning App Builder with the demo two, right? Regarding Lightning App Builder, right? And so this demo two would be on how to build a custom record page for Lightning Experience and Salesforce mobile app. Right. So a few things when we start away, right? Obviously, my demo one was more into building the custom homepage, right? That we have created in front of you that you would see at the end of the video where I've shown that with the layouts, and now it is showing the Salesforce app, Sales app homepage, right? You would see over here how it's looking like. Right. So now we would go ahead with the to build a custom record page, right? Right. So probably obviously you need to sign up and log in into Salesforce or right to stimulate the Salesforce. So you guys follow step by step and my directions, pointers. There will be everything. I will be guiding you everything where to move and where to go. Right. So I'll just take you right away. Right. So on the top, you would see the gear up icon, the top right hand corner. You would see gear up. Right. जो setting वाला होता है. Click on that. You have to click on setup. Right. So this is the setup home page, what exactly it's looking like. So before I begin with, so you need to understand few things, right? I'll help. I'll just portray, my content away in front of you. So when we know we can use the Lightning App Builder to add, remove, or reorder components on a record page, right? To give users a customized view for each object's record, right? So more fantastic is that you can customize a record page and assign it to specific Lightning apps, right? To give your users access to a record page customized especially for the context of the app that they are working in, right? And obviously, just like a homepage, you can create a custom record page in a different ways as well. So now we'll just begin with to create a custom lightning page. So first of all, on the left hand side, if you just check that, there's a quick find right on the left hand side. So on the search over here, quick find box. So I just what do you need to type? You need to type app builder. Okay. So once you type app builder, so obviously below this user interface, you would see lightning app builder. Click on this. So after clicking the Lightning App Builder, so definitely there's a button called New, right? Below, obviously, we have created for the Salesforce home page as well, sales home page, right? Over here, if I click on New, we have to create a new, right? So here the pop-up appears after clicking the new, and on the left-hand side, you will see that there are different, particularly, options. It says app page, home page, and record page. So now the topic is the demo is upon the record page, right? We'll click on the record page. So after clicking the record page, so definitely you have to click on the next button, right? So over here you have to enter the label name. So probably if I'm talking about certain things, so I'll just you can take a new example. I'll just write new account page, okay, and the particular object I would choose. I'm talking about the account, so I'll just you can write account. Otherwise, account तो आ ही जाएगा आपके सामने, right? Click on account, and we click on next. ठीक है. Now, obviously, there would be two options. Pop up तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, and if there would be two, tabs on the top: choose page template and clone Salesforce default page, right? So over here, probably we would the template that we'll be choosing. It's on header and right slide bar, right? Sidebar, right? So over here, header and right sidebar वो ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पर ये रहा. It's on the fourth, right header and the right sidebar. Click on this. ये देखो आप राइट हैंड साइड में ही जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो कैसे चेंजेस आए हैं मेरे सामने. ठीक है. ना दिस वुड बी ऑन द डेस्कटॉप व्यू. जो आपके सामने दिख रहा है वो डेस्कटॉप व्यू भी है. राइट इट्स ऑन अ टैब लैपटॉप व्यू और टैब व्यू और मेनी इन द हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप हो गया या तो वर्टिकल हो गया पोर्ट्रेट में. तो सब आपको मोबाइल व्यू भी सब दिख जाएगा आपको. राइट आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन डन. So now after clicking on done, obviously what you have to do is that आपको जो सामने दिख रहा है यहाँ पर like add components here and so on आपको add, right? देखो obviously on the left hand side you will see यहाँ पर देखो left hand side में components का option भी है, right? यहाँ पर देखो standards 42 लिखा है. It means 42 standard components हैं. तो आप यहाँ से drag और यहाँ पे drop कर सकते हो, राइट. सो इफ आई स्क्रॉल डाउन देखो कस्टम तो अभी है नहीं, मैनेज्ड है, राइट. ये भी ड्रैग हम ड्रॉप कर सकते हैं. अगर आपको कुछ कंपोनेंट्स ऐप एक्सचेंज से चाहिए आपको, सो बिलो ऑन दिस
यहाँ पर लिखा है, देखो ब्लू बटन भी है, गेट मोर ऑन द ऐप एक्सचेंज। यहाँ से क्लिक करके आप यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट यू वांट टू इंस्टॉल ओवर हियर। होता क्या है कि वो गेट इट नाउ आता है, गेट इट करो, कंपोनेंट पे जाओगे, फिर इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल बाय एडमिन, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, प्रोडक्शन में इंस्टॉल करो या सैंडबॉक्स में करो, एंड थ्रू द पैकेज आईडी ऑफ दैट यू कैन गेट इट ओवर हियर, राइट। एक पैकेज आईडी होती है हर किसी कंपोनेंट की और हर ऐप, कोई ऐप की, राइट। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। अब स्टैंडर्ड कंपोनेंट में कुछ मुझे ऐड करना है, चलो आपको ऐड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में आई जस्ट राइट हाईलाइट्स पैनल, ठीक है। इस पैनल को मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके और यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ये आपको अब ये हो गया, यहाँ पर दिख गया हाईलाइट्स पैनल का, ठीक है। अब so now we have dragged the highlights panel. So now over here एक दूसरा कंपोनेंट हम लोग ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्विटर, ठीक है। काश ये एलन मस्क होता है, यहीं से ड्रैग करके यहीं पकड़ के छोड़ देता मैं, बट एनी वे वी हैव टू ड्रैग दिस ट्विटर कंपोनेंट। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आई गो आई जस्ट एड इट ओवर हियर ऑन द राइट साइड, राइट, राइट पे यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। एंड द थर्ड वन आई वुड से टैब्स, ठीक है, टैब्स को भी ड्रैग करके यहाँ मैंने लेफ्ट में ये मैंने कर दिया ड्रॉप, ठीक है। So over here, you would find this particular tab component which I have dragged and dropped over here. So now we have to add certain tabs in this particular component. अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा related details दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो हमें कुछ यहाँ पर कुछ ऐड करना है। So अब मैंने आपको जैसे बताया था, ये प्रॉपर्टीज होती है कंपोनेंट्स की, प्रॉपर्टीज जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो प्रोबेबली यू वुड फाइंड ये ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्विटर का आ गया, ट्विटर कंपोनेंट का प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। हाइलाइट्स ऑब्वियसली पैनल का भी दिख रहा है यहाँ पर। तो ये देखो ये चेंजेस आ रहे हैं यहाँ, इसका हमेशा इनकी प्रॉपर्टी दिखेगी यहाँ पर। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन एडिट फिल्टर जो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे वी नीड टू ऐड अ टैब। ऐड टैब पे करने के बाद ये जो डिटेल्स दिख रहा है, इसको डिटेल्स पे क्लिक करो, राइट। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद प्रॉब्ली इफ आई वुड स्क्रॉल इट सो देखो आप बहुत चीज लिख सकते हो, यू कैन जस्ट ऐड एज मेनी थिंग्स, राइट। तो मुझे भी क्या ऐड करना है, देखो आप कस्टम भी कर सकते हो, कस्टम मतलब अपना खुद का भी नाम दे सकते हो, राइट, बट वो मुझे करना नहीं है। आई जस्ट ऐड एक्टिविटी। तो देखो स्टैंडर्ड देर आर मेनी टैब्स इन स्टैंडर्ड, ठीक है। सो मैं एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ डन पे। So after adding, you could say after adding the, this particular tab, activity tab, right now what we have to do, we have to add a standard component to each tabs, right? अब जैसे यहाँ पर related दिख रहा है, details दिख रहा है, ये activity, ये tabs दिख रहे हैं, तो इनके अंदर ही each में, each tabs में हमें एक component, standard component add करना है, ठीक है। तो अब जैसे related है, अभी आपको करके दिखा देता हूँ। related tab है ना, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है। related tab पे क्लिक किया और यहाँ पर दिख रहा है इसके बीच में बॉक्स में ऐड कंपोनेंट हियर, ठीक है, बहुत छोटा लिखा है, ठीक है, पकड़ लिया अपन ने। क्लिक करो उसको यहाँ पर। अब ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो प्लस का आता है, उस पर क्लिक नहीं करना। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है ना, हमने जैसे स्टैंडर्ड कंपोनेंट हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया, वैसे ही हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर भी ड्रॉप करना है हमें, ठीक है, इस प्लस के नीचे, ध्यान रखना। तो अब जैसे रिलेटेड है तो हम ढूंढेंगे रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। अब रिलेटेड लिस्ट ये वाला नहीं, सिंगल वाला नहीं, ये वाला रिलेटेड लिस्ट, लिस्ट एस, ठीक है। ये हमें कर दिया ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। कूल गाइस, चेंजेस आपके सामने आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, अपडेट हो चुका है। अब नाउ विल गो फॉर द डिटेल्स वन। डिटेल्स में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगेन वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस जो हमने रिलेटेड के लिए किया है। यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करो यहाँ पर, और ओवर हियर हम एक चैनल कंपोनेंट ढूंढेंगे, जैसे अभी टाइप रिकॉर्ड डिटेल्स, ये रहा रिकॉर्ड, मोबाइल वाला नहीं, पहला वाला रिकॉर्ड डिटेल्स को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करो। तो गाइस ये आपके सामने चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर, राइट। एंड सेम गोज विद एक्टिविटी एज वेल। तो एक्टिविटी पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर, एंड इस पे ऐड कंपोनेंट पे क्लिक किया, और इसके लिए भी ऑब्वियसली स्टैंड कंपोनेंट है एक्टिविटीज विद एस, एक्टिविटीज, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप,
सो गाइस आपके सामने चेंजेस आ गए हैं, एक्टिविटी भी हमने कर दिया है। जो एक्टिविटीज हम नॉर्मल हम से एनी सेल्स ऐप में जाते हैं, या सेल्स ऐप या कोई भी ऐप लॉन्चर के थ्रू जाते हैं, या कोई अकाउंट रिकॉर्ड पेज देखते हैं, या किसी हम अकाउंट पे क्लिक करके हम उसके अकाउंट पेज में देखते हैं, तो ऐसे ही दिखता है ना। ऐसे रिलेटेड में रिलेटेड डिटेल्स आ गई, डिटेल्स में आ गया, एक्टिविटीज में देखो यहाँ पर न्यू टास्क, न्यू इवेंट, लॉग कॉल, ये तो आपने देखा ही देखा है। तो ये हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं यहाँ से, राइट। तो ये तो चलो, ये तो मेरा यू कैन से हैव बिल्ड द रिकॉर्ड पेज फॉर व्हाट, फॉर अकाउंट, ठीक है। Now the thing is that what we have to do, now we have to particularly activate the page and assign it to as the org default, right? And we have to make it available to both desktop and phone users के लिए भी, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको एक टॉपिक भी बोला था कि टू वी नीड टू बिल्ड अ कस्टम रिकॉर्ड पेज फॉर द लाइटिंग एक्सपीरियंस एंड फॉर सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप के लिए भी, तो वो मेरे डेस्कटॉप में भी दिखेगा और मोबाइल यूजर्स के लिए भी दिखेगा, राइट। सो ऑब्वियसली फॉर दैट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सेव करना पड़ेगा। तो सेव कैसे करेंगे, टॉप में राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे ब्लू बटन होगा सेव, क्लिक ऑन दैट। So now over here, it's the pop-up appears, say page save. So we need to activate it, right? एक blue dark blue button होगा activate का, click on that. फिर एक पॉपअप आया एक्टिवेशन न्यू अकाउंट पेज के लिए, ठीक है। और probably just scroll down, so there would be few tabs, org default, app default, account record, type and profile, right? So मैंने क्या होता है, we had to assign it to as the org default, ठीक है। तो ये org default पे ही क्लिक रहने दो, सिलेक्ट होने दो, और यहाँ नीचे आओगे तो देखो assign as org default, इस पे क्लिक करो भाई। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप मोबाइल्स के लिए, मोबाइल यूजर्स जो फोन यूजर्स के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डेस्कटॉप, फोन और डेस्कटॉप एंड फोन, तो हम सिलेक्ट करेंगे थर्ड वन, दैट इज डेस्कटॉप एंड फोन के लिए होना चाहिए। देन वी क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सो ऑब्वियसली आपके सामने देखो रिव्यू असाइनमेंट आ गया, फॉर्म फैक्टर्स डेस्कटॉप के लिए, करंट ऑर्गेनाइजेशन और न्यू और डिफॉल्ट, ये देखो आपके सामने दिख रहा है। सो डोंट डू एनीथिंग, राइट, जस्ट क्लिक ऑन द ब्लू बटन कॉल सेव। सो गाइस नाउ दिस इज द फाइनल, आई हैव सेव्ड, मैंने सेव भी कर लिया है, एक्टिवेशन भी कर लिया है। नाउ जो आपको लेआउट सामने दिख रहा है, राइट, माइट बी लिटिल सिमिलर आप जब ओपन करोगे। द ओनली थिंग इज दैट आप देखो ऊपर जो अकाउंट नेम है एज कम्युनिकेशंस है, एंड सो ऑन है, एक्टिविटी है, रिलेटेड है, एंड ये साइड में जो राइट हैंड साइड में ट्विटर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कंपोनेंट, तो मैंने देखो ये भी देखो। चलो मैं आपको पूरा व्यू करके दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है, राइट। सो ऑब्वियसली you need to go on this particular setup home page। obviously ये कैसे आता है, ये setup से आता है, gear up से, और setup पे क्लिक करके setup home page है। now we have to click on the app launcher ये है लोगो के नीचे, right, and you have to type in for accounts, क्योंकि हमने अकाउंट पेज ही बनाया है, right, अकाउंट का रिकॉर्ड पेज बनाया बेसिकली। तो अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, ये रहा अकाउंट्स, क्लिक ऑन अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स में जैसे आप क्लिक करोगे, सो प्रोबेबली यू वुड फाइंड रिसेंटली व्यूड में एज कम्युनिकेशन जो मैं आपको बात कर रहा था। अदरवाइज आप ऑल अकाउंट्स पे क्लिक कर सकते हो। ऑल अकाउंट्स में आप देखो बहुत सारा देयर आर एवरीथिंग। सो ये मैं चलो एज कम्युनिकेशन जो थर्ड नंबर पे एज कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये एक अकाउंट है, अब इसका रिकॉर्ड पेज में हम जा रहे हैं। गाइस ये रहा आपके सामने एज कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया था, ये टैब्स मैंने कंपोनेंट्स ये सारे ऐड किए हैं। फिर मैंने रिलेटेड ये टैब्स के नीचे जो मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स डाले हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, और इट्स ऑल डिक्लेरेटिव मेथड, राइट, पॉइंट एंड क्लिक टूल, एंड डिटेल्स है। फिर देन यू हैव एक्टिविटीज है, ये देखो आपके सामने दिख रहा है, जो हमने बात की थी, न्यू टास्क, इवेंट्स एंड ऑन, लॉग कॉल एंड ईमेल एंड ऑल, और राइट हैंड साइड पे देखो ट्विटर, ठीक है। मैं एलन मस्क को पकड़ के यहीं पर ला दिया ठीक है। ऑब्वियसली गाइस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट, फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। मैं हर मेरे वीडियो में पॉइंटर्स, डायरेक्शन सारे बताता हूँ, कहाँ का क्लिक करो, क्या एंटर करना चाहिए, एज अ बिगिनर, एज इट्स फॉर स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स, interns, and a person who's very passionate about learning Salesforce, जो crazy है यार, like me, I'm a crazy fan of Salesforce। कैसे how to build a custom record page for lighting experience in Salesforce mobile app as well, right, मैं मोबाइल से भी खोल सकता हूँ, right। So guys, please like, share, follow, and do subscribe, right, and definitely जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम बोलते हैं keep loving Salesforce।